What is absorption? Absorption means movement of drug from the site of application to systemic circulation. अगर वन सेंटेंस में अगर आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, it is all about movement of any unchanged drug from the site of administration to systemic circulation. And as we know, for showing their application, for showing their pharmacological action, every drug should reach to systemic circulation. Without reaching to systemic circulation, it will not show their pharmacological action. But most of our drug we are taking through oral route. जो मोस्ट कॉमन रूट है, मोस्ट कन्वेनियंट, वो कौन सा रूट है? ओरल. सो एब्जॉर्प्शन इज important part of oral route because after absorption it will reach to systemic circulation and then it will show their action. Okay, that means when you take medicine through mouth, it goes to GIT and from GIT it will absorb, then it will reach to systemic circulation where it will show their action. So for showing their action, absorption is most important part, mostly in case of oral route. Okay, so absorption is movement of drug from the site of administration to systemic circulation. Okay, you can see a definition of absorption here. As I said, most of the drug administered extravascularly. Extravascularly, that means ओरल रूट भी है और भी रूट है. एक्स्ट्रावास्कुलर में सिर्फ ओरल नहीं आते, आईवी नहीं दिया जा रहा, राइट? सो इफ यू वांट टू शो देयर एक्शन, it should reach to the blood circulation from their site of application. Therefore, absorption is important step. Now, this is the plasma concentration time profile graph. For any medicine, when you take medicine inside the body, you will find this type of graph. This is the time of administration at time 0. Okay, at time 0 you have taken medicine inside the body. Okay, as the time passes, the concentration increases inside the body because on x-axis we have taken time and on y-axis we have taken concentration. So as the time passes, the concentration increases and at a point where concentration reach its maximum, and that is called Cmax. Cmax is the maximum concentration of any drug that will reach to blood or plasma. इसके ऊपर कोई कंसंट्रेशन होती नहीं है किसी भी मेडिसिन की. सभी ड्रग की अलग अलग Cmax वैल्यू होती है. Okay, after that the concentration will start decreasing. Okay, almost 90% will be decreasing and then will start decreasing but very slow. Okay, so this is a T0 is equal to time of administration. Cmax is the maximum concentration of drug that will reach to plasma or blood circulation, and Tmax the time at which drug reach to its maximum concentration. It is called Cmax. The first graph before Cmax is called absorption phase. जब तक absorption होगा concentration बढ़ता रहेगा. ओके, एब्जॉर्प्शन जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, राइट? तो उसके बाद कंसंट्रेशन आपका धीरे धीरे कम होना शुरू होगा. So this is called absorption phase and this is called, or second name is called post absorption phase. उसमें सारे आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन भी, मेटाबॉलिज्म भी, एक्सक्रीशन. फर्स्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन जिसमें कंसंट्रेशन
बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम गए, उसके बाद कंसंट्रेशन घटना शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज। इसी में आपको डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सारे स्टेप आ जाएंगे, राइट। एंड दिस एरिया is called area under curve, and basically it includes or it describes the bioavailability of drug। कितने एरिया को ये कवर कर रहा है, इसी के अंदर तो कंसंट्रेशन है, और इसी के अंदर किस रेट से रीच कर रहा। तो बायो अवेलेबिलिटी के डिफिनेशन में दो टर्म होते हैं ना, रेट एंड एक्सटेंट। तो किस रेट से और कितनी कंसंट्रेशन, यही तो कंसंट्रेशन है जो प्लाज्मा के अंदर जा रही है। तो एरिया अंडर द कर्व इट डिस्क्राइब बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। हाँ जल्दी आ जाएगा फटाफट। एक तो लेट में आज ज्वाइन किया, उसके बाद भी लेट, बंद करो उसको। ओके, सी मैक्स हो गया एंड सी मिनिमम, जहां पे कंसंट्रेशन मिनिमम हो, कहां पे, प्लाज्मा में या ब्लड सर्कुलेशन में। ये हम बात कर रहे हैं कहां की, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ये, ब्लड सर्कुलेशन। ओके, ये आपकी कंसंट्रेशन होगी, तो यहाँ पे यूनिट क्या लिखाएगी, मिलीग्राम पर एमएल या माइक्रोग्राम पर एमएल। ये टाइम है तो इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड, मिनट, घंटे, जो भी है ना, आर। सो ये अभी ग्राफ इन शॉर्ट में हमने बताया, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे। उसमें सारे टर्म को डिफाइन भी करना वो आपके है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, वेयर you can define movement of drug from the site of application or site of administration to the systemic circulation, and it is most important step for showing their pharmacological or therapeutic action। okay, now before going to the different factors that affect on absorption, we should know what are the mechanism of drug absorption, how many types of absorption on the basis of mechanism. The first is called transcellular, the other name is intracellular. As we discussed so many times, intra means within the cells. The second is called paracellular, other name is intercellular, that means between. And the last one is called vesicular transport. Vesicular means formation of vesicles. It may be pinocytosis or phagocytosis. Endo और exo अलग चीज है। Pino means cell drinking और phago means plating. You can see the same here. Transcellular or intra, within the cells. Okay, it may be passive diffusion or carrier mediated transport. Paracellular और intercellular, दो सेल हैं, इन दोनों के बीच से इंटर, बिटवीन, यहाँ पे विदिन है ना। एंड वेसिकुलर फॉर्मेशन, दैट मीन्स endocytosis, pinocytosis and phagocytosis. Coming one by one, transcellular or intercellular, as I said, it is a type of absorption mechanism where transport of drug is done across GI epithelium. Okay. Just keep in your mind, after taking any medicine inside the body, it goes to GI lumen, है ना, वो स्टार्टिंग यहाँ से होते हैं, पूरे के पूरे आते हैं। उसके बाद आपको ब्लड सर्कुलेशन में जाना, तो उससे पहले इट हैज़ टू क्रॉस GI मेम्ब्रेन।
Okay, and as we know, the nature of most of our membrane is lipophilic in nature, है ना? जितने मेम्ब्रेन है वो किस नेचर के? लाइपोफिलिक. So for the drug which nature is lipophilic, it will easily cross to the membrane. But for hydrophilic drug, it will be difficult. So we have number of other transport mechanisms through which we can transport hydrophilic drug, like port transport, carrier mediated transport, active transport. But for lipophilic drug, it will be easily crossed. So passive diffusion is needed, only passive diffusion without use of any energy or without use of ATP, right? This is called transcellular. Here the three steps. First step is called permeation of GI epithelial cell membrane. Permeation of GI epithelial cell membrane. फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, इसी को क्रॉस करना है ना. ओके, एंड इट इज कॉल्ड अ लाइपोफिलिक बैरियर, क्योंकि इसका नेचर क्या? लिपिडिक इन नेचर. दिस इज द मेजर ऑब्स्टेकल टू ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्योंकि फर्स्ट जो ऑब्स्टेकल है वो क्या है? जीआई मेम्ब्रेन. लाइपोफिलिक नेचर का ड्रग हुआ वो तो इजीली क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक हो जाएगा तो उसके लिए वो एक बैरियर की तरह काम कर रहा. तो दिस इज द मेजर ऑब्स्टेकल, है ना, फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन. फर्स्ट स्टेप, मूवमेंट अक्रॉस द इंट्रासेलुलर स्पेस और साइटोसोल. जब इसको क्रॉस कर गया, ब्लड के अंदर आ गया, इसके अंदर बहुत सारे साइटोसोल्स हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको अंदर क्रॉस करना. उसके बाद ब्लड के बाद किसी न किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पे जाना है. थर्ड स्टेप तो वही होगा ना, परमिएशन ऑफ लेटरल और बेसोलेटरल मेम्ब्रेन. दिस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये परमिएशन थ्रू जीआई, क्योंकि इसको नहीं क्रॉस करेगा तो वो ब्लड के अंदर जाएगा ही नहीं, और जब ब्लड के अंदर जाएगा नहीं तो वो जिस भी ऑर्गन को जाना वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहा. तो फर्स्ट ऑब्स्टेकल क्या है? जीआई मेम्ब्रेन. ये तीन स्टेप होते हैं इसमें, ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर. आ रही ना बात समझ में? एंड एज वी डिस्कस, ट्रांससेलुलर में भी पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ. पैसिव में आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, एक्टिव में जरूरत है. और जहां पे भी एनर्जी लग रही है वहां पे अगर मेटाबॉलिक पॉइजन हो गया तो वो स्टेप प्रिवेंट हो जाएगा. ठीक है, you can see in this slide, this is called लाइपोइडल मेम्ब्रेन और जीआई मेम्ब्रेन, क्योंकि इसका नेचर क्या है? लिपिडिक इन नेचर. ठीक है, सो यू कैन सी हाइड्रोफोबिक, दैट मीन्स लाइपोफिलिक इन नेचर. इट इज इजिली क्रॉस कर गया ना. और इसकी जो थिकनेस है कितनी मोटी है, मतलब सारी की सारी ड्रग क्रॉस कर गए. इट कैन बी इजिली क्रॉस because the nature of drug is lipophilic as well as the nature of membrane is lipophilic. But if the nature of drug is polar, that means hydrophilic, and if the size is small, it can be crossed, but little amount. Some may be prevented by this membrane. If the size is small and nature is polar or hydrophilic. But if the size is large and nature is again polar, most of the part will not cross. Only a small portion. You can see the thickness. यहाँ पे thickness ज़्यादा है, यहाँ पे thickness कम है. पोलर दोनों ही है. यहाँ पे क्या डिफरेंस है? साइज, है ना. पोलर को तो ये क्रॉस करने ही नहीं देगा, लेकिन अगर छोटे साइज के हैं तो किसी न किसी तरीके से ये क्रॉस कर जाएगा. लेकिन अगर लार्ज साइज है तो मोस्ट ऑफ द ड्रग विल नॉट क्रॉस. ठीक है,
और अगर पोलर नेचर का आयंस है तो ये तो क्रॉस करेगा ही नहीं। तो मोस्टली lipophilic drug will be easily cross the membrane, GI membrane, because the nature of membrane is again lipophilic and the nature of drug is lipophilic. एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाई है आप लोगों ने। दिस इज डन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। और जब भी एनर्जी लगेगा इट कैन बी इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन, क्योंकि ये मेटाबॉलिक पॉइजन क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन को रोक देता है। तो जब एटीपी बनेगा ही नहीं, एटीपी की जरूरत है यहाँ पे क्रॉस कराने के लिए, तो फिर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, यू कैन सी ड्रग है, कैरियर है, एक कॉम्प्लेक्स बना, वापस इस साइड आया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो गया, ड्रग फ्री हो गया, वापस से ये कैरियर गया, ये स्टेप कंटिन्यू चलता रहता विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो पढ़ा पहले ही भी है ना। सो कंपैरिजन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में क्या होता है, along the concentration gradient, और एक्टिव में against the concentration gradient। या इसको बोलते हैं डाउन हिल प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, अप हिल प्रोसेस, फ्रॉम लो टू हाई विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। Again, passive diffusion can be classified into passive diffusion for transport as well as facilitated or mediated diffusion. Passive diffusion, which is most common type of drug transport, also known as non-ionic concentration, and here 90% of the drug follows passive diffusion. 90%। अब जो 10% बचे हैं वो किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो पैसिव डिफ्यूजन है उसमें 90%। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज पैसिव डिफ्यूजन। हेयर द ड्राइविंग फोर्स इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि डिफरेंस इन कंसंट्रेशन एट 2 पॉइंट, एक जगह पे हाई है, एक जगह पे लो है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपको किसी को फीवर हो गया, आप कौन सा मेडिसिन लोगे, पैरासीटामोल। किस डोज में आते हैं मार्केट में, 500 mg। 500 mg का आपने पीसीएम खाया, कहाँ गया ये, बॉडी के अंदर, ओरली लिया आपने, जीआई ल्यूमन में गया, इट हैज टू क्रॉस जीआई मेम्ब्रेन टू रीच द ब्लड सर्कुलेशन, एंड फिर वहां से साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा, जिस भी ऑर्गन पे जाना है, ठीक है। यहां पे आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, 500 mg एट टाइम 0, जिस टाइम आपने लिया उसको बोला टाइम 0 पे, स्टार्टिंग पे, राइट। यहां से मूव करेगा उस साइड, जब कंसंट्रेशन यहाँ पे 500 है, यहाँ पे कितनी है, 0 है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काफी लार्ज है, काफी हाई है, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा काफी फास्ट होगा। एक टाइम के बाद 350, फिर 250, 350 अगर इधर है तो यहाँ पे क्या 150 और यहाँ पे 250। ये पहले भी हमने बताया, जब दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब तो डिफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन 50% ड्रग अभी भी बचे हुए हैं जीआई ल्यूमेन में, डिफ्यूजन स्टॉप हो गया, बिकॉज डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलोज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। अब तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है नहीं, दोनों साइड तो सेम है, तो अब क्या होगा, ये बताया हमने, ये 50% ड्रग क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं। तो ये क्या होगा, इसको क्या करना, ये ब्लड के अंदर गया, उसके बाद इसको
जहाँ पे भी जाना उसको वहाँ पे भेज दिया। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को हमेशा कम रखनी है, एंड दैट इज कॉल्ड सिंक कंडीशन। बताया था आपने, है ना? सिंक कंडीशन मीन्स मेंटेन कंसंट्रेशन एट रिसेप्टर कंपार्टमेंट ऑलवेज लो, दैट इज कॉल्ड सिंक कंडीशन। ये जब लैब में भी परफॉर्म करते हैं तो आप लोग करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों करते हैं। अगर आप लोगों ने किया होगा अभी तक, टेबलेट बनाया, डिसोल्यूशन किया, 6 apparatus लिया होगा आपने, लिया, परफॉर्म किया, पूछूं मैं? अच्छे से परफॉर्म किया, बस यह अटेंडेंस के लिए, क्योंकि यही सारी चीजें लाइफ में काम आने वाली है। 6 होते हैं ना हेमिस्फेरिकल, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? 1 लीटर की होती है, और हम 900 ml फिल करते हैं क्योंकि ओवरफ्लो नहीं हो जाए। ठीक है, तो एक टाइम पे हम 6 टेबलेट ले लिया। उसके बाद आपने इक्विपमेंट को ऑन किया, लाइट ऑन किया, स्पीड को मेंटेन किया। फिर उसके बाद क्या किया? टाइम इंटरवल पे आपने सैंपल निकाला। सैंपल निकालने के बाद क्या करते हैं? यूवी लाइट में तो वो बाद में जाते हैं, एंड में। तो अगर आपने 6 सैंपल निकाल लिया 1-1 घंटे के बाद, या 2 घंटे के बाद, या आधे घंटे के बाद, जब आप सैंपल निकालते हो उस टाइम कुछ करते हो? वापस बफर डालते हो। क्यों डालते हो? टू मेंटेन द सिंक कंडीशन। पता है? अब आप सोचो, प्रैक्टिकली आप लोगों ने परफॉर्म किया, आपको पता नहीं है, इसके अंदर आपने पीसीएम डाला 500 mg, और आपने स्टार्ट कर दिया रोटेशन, है ना? बास्केट या पैडल उसको ऑन कर दिया, रोटेशन स्टार्ट हो गया, टैबलेट टूटना शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिसइंटीग्रेंट। टूटते टूटते ये यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगा, जैसे टाइम पास करेगा टूटना शुरू हो गया। आधे घंटे पे मान के चलो 50 mg, उसके बाद 1 घंटे पे 100 mg। इसका मतलब ये क्या है? इसके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रहे हैं। आपने सैंपल निकाला 2 ml या 5 ml। अगर आप सैंपल निकालने के बाद उतनी ही वॉल्यूम बफर अगर आप ऐड नहीं करोगे, तो एक टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन और जो बची हुई है बराबर हो जाएगी। तो फिर डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। डिफ्यूजन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको यहाँ की कंसंट्रेशन क्या करनी है? लो रखनी है। तभी तो आप बफर डालते हो, टू मेंटेन सिंक कंडीशन। तो टू मेंटेन सिंक कंडीशन वी शुड रिप्लेस द सेम अमाउंट ऑफ बफर एट ईच एंड एवरी टाइम। वरना क्या होगा? यहाँ की कंसंट्रेशन एक टाइम पे उतनी हो जाएगी जितनी हमारी बची हुई है, तो 50% ऑफ ड्रग डिजोल्व ही नहीं होगा। तो वही यहाँ बॉडी के अंदर भी तो हो रहा है। ओके, ड्राइविंग फोर्स क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ऑलमोस्ट 90% ऑफ ड्रग जो है पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, एटीपी। पोर ट्रांसपोर्ट, नाम ही बता रहा है पोर, है ना? यहाँ पे पोर बने हुए हैं, स्मॉल पोर, लार्ज पोर। हेयर इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। कन्वेक्शन सुना होगा नाम, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड। समुद्र में जो आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल मोशन का किस तरह के है ना, कन्वेक्शन। वही चीज है यहाँ पर है। बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ लो मोलिकुलर वेट लेस देन 100। ओके, लो मोलिकुलर साइज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ पोर। अगर पोर के डायमीटर से बड़ा हो जाएगा तो ये तो क्रॉस करेगा ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। जितनी बड़ी पोर है उस साइज की भी कर जाएगी किसी तरह, उससे छोटी होनी चाहिए। तो लो मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर साइज स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ पोर, एंड जनरली वाटर सोलुबल ड्रग। क्यों? क्योंकि जो लाइपोफिलिक है वो तो इजीली क्रॉस कर रहा है ऐसे ही पैसिव डिफ्यूजन से, उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वाटर सोलुबल है, हाइड्रोफिलिक है, तो मेम्ब्रेन की वजह से वो क्या हो रहा है? बैरियर है, वो किसके थ्रू जा रहा है? पोर के थ्रू। बीच बीच में पोर है, वो उधर से निकल जा रहा है।
एग्जाम्पल यूरिया, वाटर एंड शुगर। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये तीनों किस नेचर के हैं? हाइड्रोफिलिक। यूरिया, वाटर तो है ही, एंड शुगर। Here the driving force is hydrostatic pressure और osmotic pressure। वहां पे क्या था? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल का। ये क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में। ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रो ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग फोर्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ड्राइविंग फोर्स फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड और मेडिएटेड डिफ्यूजन, यहां पे भी सेम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक प्रोटीनेसिस नेचर के होते हैं और इसके साथ ये कंबाइन करके और कैरियर के साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेम प्रोसेस होता है, वापस से यहाँ पे कैरियर फ्री हो जाते हैं और ये कैरियर वापस जाते हैं। यहाँ पे भी सेम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही ड्राइविंग फोर्स है। Active transport. Active means use of energy. It may be primary active or secondary active transport. Secondary active transport again subdivided into symport and antiport. क्या डिफरेंस है पता? symport जिस डायरेक्शन में आपका एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है आयंस का, दैट इज कॉल्ड symport। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, एंटीपोर्ट। एटीपी प्रोडक्शन किसी और डायरेक्शन में हो रहा है और मूवमेंट अपोजिट में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। और काउंटर ट्रांसपोर्ट, ये देख लीजिए आप। सिम्पोर्ट, एटीपी प्रोडक्शन यहां से इधर ही में हो रहा है, यहीं से आयन का मूवमेंट हो रहा। सिम्पोर्ट, यहां पे एटीपी प्रोडक्शन इस डायरेक्शन में, आयन का मूवमेंट इधर अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। Last is called vesicular transport. Again, it can be classified into pinocytosis or cell drinking, uptake of fluid solute, and phagocytosis, cell eating, uptake of solid particles. Passive diffusion is the most common type of transport mechanism where almost 90% of the drug follows passive transport. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट डाल रहे हैं। ओके, फर्स्ट, ड्रग कैन बी मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेकंड, द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन कंपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर। ओके, जितनी कंसंट्रेशन हाई होगी एक साइड की, दूसरे साइड की लो होगी, मूवमेंट फास्ट होगी, उसके बाद प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होना शुरू होगी। ठीक है, द ट्रांसफर प्रोसेस अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसफर इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जब दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो आपका डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा, तो हम इसको मेंटेन ही नहीं करते हैं, बस ये मानते हैं कि अगर दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अगर हो भी रहा तो बहुत ही कम टाइम के लिए, कि आपका प्रोसेस स्टॉप नहीं हो, वरना क्या होगा, जितने भी आप मेडिसिन खा रहे हैं उसमें से 50% वेस्ट हो जाएंगे, जो कि ऐसा होता नहीं है बॉडी के अंदर। ओके, now as per fixed first law of diffusion, one equation is given by that scientist, that is called dq upon dt is equal to dak, k is partition coefficient, in bracket concentration difference between two compartment, here GIT and plasma। अगर हम कहीं और की बात करेंगे तो वहां पे जो दो कंपार्टमेंट होंगी वहां की आपको लिखनी पड़ेगी। यहां पे क्या है, ये GIT है और ये क्या है, ब्लड या प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, P फॉर प्लाज्मा। ओके, एंड H इज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है उसकी थिकनेस, राइट। सो वेयर dq upon dt is the rate of drug diffusion
और यू कैन राइट रेट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मास पर यूनिट टाइम, कैपिटल डी डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग, ओके, ए इज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, K is the partition coefficient of the drug between two compartment. D किससे रिलेट है? ड्रग से, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग. A is the surface area of the membrane, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग. पार्टीशन कोफिशिएंट मेम्ब्रेन का नहीं है, ड्रग का. डिफ्यूजन कोफिशिएंट ड्रग का ही है. एरिया मेम्ब्रेन का है और थिकनेस मेम्ब्रेन का है. तो यहाँ पे दो चीजें ड्रग से रिलेटेड है और दो चीजें जो आपका बैरियर है या मेम्ब्रेन है उससे रिलेटेड है. अब आप इस इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली रिलेशन में आ रहे हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनवर्सली है. एक ही इनवर्सली है, थिकनेस. ऑब्वियसली जितनी ज्यादा थिकनेस होगी मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन स्लो हो जाएगी. अंडरस्टूड है ना? अगर थिकनेस कम है इजीली क्रॉस कर जाएगी, और अगर थिकनेस काफी है, काफी मोटी है, तो स्लोली मूव करेगी. पार्टीशन कोफिशिएंट, ये लोग आपने पढ़ा हुआ बी फॉर्म सेकंड ईयर. सो दिस इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग बिटवीन टू सॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट एक्वस नेचर का और एक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक नेचर का. तो इससे क्या पता चलता है आपका नेचर ऑफ द ड्रग. ड्रग किस नेचर का, लाइपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, ठीक है. अगर पार्टीशन कोफिशिएंट लेस देन 1 है, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, और पार्टीशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो लाइपोफिलिक. क्योंकि जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसकी जो वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये एक्वस सॉल्वेंट. तो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्वस है. अगर लेस देन 1 हो गया दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक, और ग्रेटर देन 1 हो गया तो लाइपोफिलिक. ग्रेटर देन 1 का मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें ज्यादा गया ऑर्गेनिक में, दैट मीन्स लाइपोफिलिक इन नेचर, है ना. तो अगर पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है दैट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी मोर. पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा का मतलब ये हो गया कि लाइपोफिलिसिटी ज्यादा है. ज्यादा का मतलब ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 का मतलब लाइपोफिलिक इन नेचर, और लाइपोफिलिक का मतलब ये है कि जो मेम्ब्रेन है वो भी लाइपोफिलिक है, तो इजीली क्रॉस कर जाएगा. अंडरस्टूड? थिकनेस तो पता चल रहा ना, थिकनेस अगर ज्यादा होगा तो क्रॉस इजीली कहां करेगा. ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन एट टू पार्ट और एट टू कंपार्टमेंट. यहाँ पे जीआईटी और प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो हमने जीआईटी और प्लाज्मा मेंशन किया. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट फास्ट होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेशन में आ रहे हैं. दोनों के डिफरेंस कम हो जाएंगे, ये स्लो हो जाएंगे. तो अब आप देख लो स्टार्टिंग में जब आपने 500 mg लिया, इधर 0 है. सबसे ज्यादा डिफरेंस कब है, जब आपने स्टार्ट में लिया था, और जैसे टाइम पास हुआ डिफरेंस कम होना शुरू हुआ, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे. ओके. और रेट ऑफ डिफ्यूजन 0 कब हो जाएंगे, जब दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएंगे, 0. 250 तो इसलिए 250 नहीं करनी है, यहां से हमेशा निकालती रहनी है टू मेंटेन सिंक कंडीशन. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं. फर्स्ट फैक्टर लाइपोफिलिसिटी इन नेचर. सेकंड फैक्टर अगर हाईली लाइपोफिलिक है और लार्ज वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट है तो हाई रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन. सेकंड एरिया ऑफ मेम्ब्रेन. एरिया जितनी ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी.
तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एरिया कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज में? स्मॉल में। स्मॉल में किस पार्ट पे? दो नंबर। इसका क्या है इंपॉर्टेंट? अपोजिट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। जितने भी अभी आपने पढ़ा वो सारे इसमें। ठीक है, पैसिव, एक्टिव, पोर, कैरियर, आयन ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, ये सारी चीजें। दैट्स ऑल अबाउट mechanism of drug absorption.